بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ ہم نے ٹاپک کور کیے، بڑے امپورٹنٹ ٹاپک چیپٹر نمبر 4 کے تھے، ریم اینڈ ٹائپس، اور سیکنڈ ہم نے پڑھا رام اینڈ ٹائپس آف رام۔ آج ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف مین میموری۔ اس میں سارا وہ میکانزم بتایا جائے گا۔ مین میموری، اس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ کس فارم میں سٹور ہوتا ہے، کیسے سٹور ہوتا ہے، سی پی یو اس ڈیٹا کو لیتا کیسے ہے، پھر پروسیس کرنے کے بعد واپس وہ ڈیٹا مین میموری کی طرف بھیجتا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا آج کا جو ہمارا پارٹ ہوگا وہ ہے اسٹرکچر آف مین میموری۔ پریویس لیکچرز میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر پروگرام چلنے سے پہلے مین میموری کے اندر لوڈ ہوتا ہے۔ وہ مین میموری میں لوڈ ہوگا تبھی چلے گا۔ جب ہم کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں، کمپیوٹر کو بوٹ کرتے ہیں، ٹرن آن کرتے ہیں، کمپیوٹر کو سٹارٹ کریں گے تو تب فوراً سے ایک لوڈنگ ہوتی ہے، رام کا سارا ڈیٹا ریم کے اندر لوڈ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ونڈو لوڈ ہوتی ہے۔ ہم عموماً یہ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے، کیا ونڈو لوڈ ہو رہی ہے؟ وہ لوڈ کدھر ہو رہی ہے؟ مین میموری کے اندر۔ جب تک وہ مین میموری کے اندر لوڈ ہوگی، ہونے کے بعد ہی وہ چلے گی۔ اگر مین میموری میں لوڈ نہیں ہوگی تو وہ چلنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ تو جتنے بھی پروگرامز ہیں، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے، ہمیں اس کا نچوڑ پڑ چکے ہیں۔ All programs are loaded in main memory before execution۔ ہر پروگرام چلنے سے پہلے مین میموری کے اندر لوڈ ہوگا۔ تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر ہم گیم پلے کر رہے ہیں تو پہلے وہ لوڈ ہوئی ہے مین میموری میں، ابھی ہم نے اس کا کوئی مشن کلیئر نہیں کیا، ابھی ہاف تک پہنچے ہوئے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، تو دوبارہ جب ہم کمپیوٹر آن کریں گے وہ ادھر سے ہی شروع نہیں ہوگی، بلکہ نئے سرے سے ہمیں سٹارٹ سے اسے شروع کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ مین میموری وولٹائل ہوتی ہے، اس میں جتنا ڈیٹا ہوتا ہے جب کمپیوٹر آف ہوگا وہ ڈیٹا ضائع ہو جائے گا۔ یہ ریم کے اندر میں بتا چکا ہوں۔ تو اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس میں ڈیٹا کس طرح سے سٹور ہوتا ہے؟ تو اس کی ایک لاجیکل شیپ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ مین میموری میں بائٹس بنے ہوئے ہیں۔ مائنر سا انٹروڈکشن میں نے اس کا دیا تھا، آج تھوڑا ڈیٹیل میں سے پڑھیں گے۔ مین میموری کے اندر بائٹس بنے ہوتے ہیں۔ اب ہوتے کتنے بائٹس ہیں؟ کیا 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 1000 ہوں گے، لاکھ ہوں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی مین میموری کی کیپیسٹی۔ اگر 1 جی بی ہے تو اس کو نمبر آف بائٹس میں کنورٹ کر لیں تو ٹوٹل نمبر آف بائٹس آ جائیں گے۔ 1 جی بی میں جتنے بھی بائٹس بنتے ہیں، اگر 4 جی بی کی ہے تو پھر نمبر آف بائٹس میں ہم اسے کنورٹ کر لیں۔ اس میں نمبر آف بائٹس کتنے ہوتے ہیں؟ اٹ ڈیپینڈز اپان کیپیسٹی آف مین میموری۔ جتنے زیادہ اس کی کیپیسٹی ہوگی اتنے ہی بائٹس زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ملینز میں ہوتے ہیں بائٹس، اس کے اندر ملینز آف بائٹس ہوتے ہیں۔ پھر جتنے بھی بائٹس ہیں ان کو ایک یونیک ایڈریس ملا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ پہلے بائٹ کو ایڈریس 0 ملا ہوا ہے تو نیکسٹ کو 1 2 3، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ پہلے بائٹ کو اگر ایڈریس 0 ملا ہوا ہے دوسرے کو 1 2 3 سو آن آگے چلتا جائے گا۔ اس کا ایڈریس 0 1 0 0 0 1 1 0 اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے زیادہ بائٹس ہوں گے اتنے ہی زیادہ ایڈریس اس کے بنیں گے، اور ہر ایڈریس یونیک ہوگا، کسی دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ تو اس کو ایڈریس آف بائٹ کہتے ہیں۔ ایڈریس آف بائٹ، مین میموری کے اندر جو بائٹس ہوتے ہیں ہر بائٹ کو ایک یونیک ایڈریس ملتا ہے جس کو ایڈریس آف بائٹ کہتے ہیں۔ پھر ہر بائٹ 8 بٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ جتنے بھی بائٹس ہیں یہ 8
छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे बिट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। इसको बिट का नाम दिया जा सकता है या सेल भी इसे कहते हैं, CELL सेल। हर बिट को भी एक एड्रेस मिलता है, किस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हर बिट को भी एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ है। अब यूनिक कैसे है, नीचे वाले को भी 0 से 7 तक है, तो फिर यूनिक कैसे बनेगा? जब ये और ये मिलेंगे तो यूनिक बन जाएगा। जब बाइट का एड्रेस और बिट का एड्रेस दोनों कॉम्बिनेशन में साथ काम करेंगे तो वो यूनिक होगा। तो जितना भी डाटा, जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, वो पहले इस मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। कहाँ पर लोड होता है? इन बाइट्स के अंदर, मेन मेमोरी के बाइट्स के अंदर लोड होता है। अब एक बाइट को अलग से मैं ड्रा कर रहा हूं। ये जो एक बाइट है इसको अलग से ड्रा कर रहा हूं। इसके 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये इसका एड्रेस है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके दो पार्ट अगर हम बनाएं, एक वो जिसमें सबसे कम वैल्यू है बिट की, और एक वो जिसमें बिट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो ये जो राइट साइड में बिट बन रहा है, राइट साइड बिट, इसको कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या ऐसे कहा जाता है लो ऑर्डर बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होगा? बाइट की राइट साइड पे जिसकी वैल्यू सबसे कम है, 0 से एक एड्रेस दिया गया है, उसे कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लो ऑर्डर बिट। और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है 7। इससे नाम दिया जाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट bit। MSB stands for most significant bit, और इसे एक और नाम भी दिया जाता है हाई ऑर्डर बिट। हाई ऑर्डर बिट जिसमें वैल्यू मैक्सिमम है, एड्रेस से सबसे ज्यादा वैल्यू। तो ये एक बाइट को अलग से मैंने ड्रॉ किया। इसके दो पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। दो पार्ट्स कौन से? एक जिसमें सबसे कम वैल्यू शो हो रही है 0, और एक में ज्यादा, जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे, उसे कहा जाता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट साइड पे है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, उसे कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या हाई ऑर्डर बिट। तो जितना भी डाटा जो हम पढ़ चुके हैं कि वो पहले हर प्रोग्राम चलने से पहले मेन मेमोरी में लोड होता है, वो सारे का सारा इन्हीं बाइट्स के अंदर ही लोड होता है। तो ये हमारा पहला जो आज का एक पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी। आज का जो सेकंड पार्ट है कि डाटा तो इसमें लोड होता है, वो चलता कैसे, उसे चलाने वाला कौन है? कोई भी प्रोग्राम जो मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, उसे चलाने वाला CPU है। CPU छोटी सी चिप होती है जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो जो भी डाटा इसके अंदर आएगा उसे चलाना CPU ने है। तो वो डाटा यहाँ से CPU तक जाएगा कैसे? मेन मेमोरी से वो डाटा CPU तक जाएगा तभी प्रोसेस होगा। जाएगा कैसे? जाएगा तो प्रोसेस होगा। तो ये आज हमारा सेकंड पार्ट है, हाउ डज a CPU get data from main memory। कि CPU मेन मेमोरी से डाटा कैसे लेगा। तो मेन मेमोरी हम पढ़ चुके हैं कि
ये इसकी लॉजिकल शेप, इसमें बाइट्स बने हुए हैं, हर बाइट को एक एड्रेस मिला हुआ है। जब किसी भी प्रोग्राम को चलाएंगे तो इस मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। लोड किधर होगा? मेन मेमोरी के बाइट्स में। तो अगर ये सीपीयू है, होता क्या है, छोटी सी चिप होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो ये डाटा लेगा कैसे? चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक है बस एंड टाइप्स ऑफ बस। बसेस का इस्तेमाल करेगा सीपीयू। बसेस में मैंने ये पढ़ाया हुआ है पहले कि उनका काम क्या है, वो होती क्या है, समझ ले। छोटी छोटी जिस तरह वायर्स नहीं है, एक कम्युनिकेशन मीडियम है, उनका काम क्या है? बसेस ने तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा हुआ है। तमाम जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस मीडियम के जरिए जुड़े हुए हैं? बसेस की मदद से। बसेस हैं क्या? समझ ले, वायर्स हैं, छोटी छोटी वायर्स हैं, बारीक बारीक लाइंस हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और उनका आपस में जुड़ने का मकसद क्या है? इन्हीं बसेस की मदद से ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ डाटा भी शेयर करते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स भी शेयर करते हैं। तो उन्हीं बसेस को इस्तेमाल करके सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेगा। अब इसकी एक स्टोरी समझ लें। सबसे पहले जब सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेना चाहेगा तो सबसे पहले कंट्रोल बस को यूज करेगा। कंट्रोल बस, इसकी मदद से रीड का सिग्नल भेजेगा। सीपीयू ने जब मेन मेमोरी से डाटा लेना है तो सबसे पहले कंट्रोल बस को यूज करेगा। कंट्रोल बस के जरिए रीड की कमांड भेजेगा, रीड का सिग्नल भेजेगा। इस रीड की कमांड का क्या पर्पस होगा? जब मेन मेमोरी को ये सिग्नल, ये कमांड मिलेगी, मेन मेमोरी को पता चल जाएगा कि अब सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेना चाह रहा है, तो वो रेडी हो जाएगी डाटा देने के लिए। तो सबसे पहले सीपीयू ने मेन मेमोरी की तरफ रीड का सिग्नल भेजा। किस बस की मदद से भेजा? कंट्रोल बस की मदद से। सेकंड में सीपीयू एड्रेस बस को यूज करेगा। अब मैंने बताया कि मेन मेमोरी के हर बाइट को एक यूनिक एड्रेस मिला होता है, हर बाइट को एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ है। तो सीपीयू ने जिस बाइट से डाटा लेना है उस बाइट का एड्रेस भेजेगा, चाहे एक से लेना है चाहे मल्टीपल बाइट से। तो सीपीयू को जिस बाइट से डाटा चाहिए होगा वो उस बाइट का एड्रेस भेजेगा मेन मेमोरी की तरफ। फॉर एग्जांपल इस बाइट से डाटा चाहिए, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 5 है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि सपोज कर रहा हूं कि इस बाइट का एड्रेस 5 है। तो सीपीयू इस 5 नंबर बाइट का एड्रेस बस की मदद से मेन मेमोरी की तरफ भेजेगा। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एड्रेस बस को तो उसका मकसद यही है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। एड्रेस बस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर कंपोनेंट को एड्रेस मिला हुआ है। तो सीपीयू ने जिस कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना है उसका एड्रेस पहले भेजेगा। किस बस की मदद से? एड्रेस बस की मदद से। तो जो ही एड्रेस जाएगा इसकी तरफ, सीपीयू का एड्रेस जो उसने जिस बाइट से डाटा लेना है वो मेन मेमोरी तक जब पहुंच जाएगा तो मेन मेमोरी में सर्चिंग हो गई, पता चल गया ये वाला बाइट है, यहां से वो डाटा सीपीयू तक भेजेगी। मेन मेमोरी यहां से डाटा एड्रेस मैच होने के बाद सीपीयू तक भेजेगी। कैसे भेजेगी? डाटा बस की मदद से। जिस बाइट का एड्रेस भेजा गया, जिस बाइट का
एड्रेस बस के जरिए भेजा गया, उस बाइट में जो भी डाटा पड़ा होगा वो डाटा डाटा बस की मदद से सीपीयू तक चला जाएगा। तो इस तरह से सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेता है। अब सीपीयू ने उस डाटा को प्रोसेस कर दिया। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक वो डायग्राम बनाकर मैंने समझाया था, यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं उस डायग्राम को। उसमें था इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो जो भी डाटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से जाता है। जाता किधर है? मेन मेमोरी के अंदर। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो डाटा इंटर होगा वो मेन मेमोरी में लोड होगा। मेन मेमोरी से लिया किसने? सीपीयू ने। ये डाटा फैच हो गया, मेन मेमोरी से पहुंच गया सीपीयू में। किस मकसद के लिए पहुंचा? ताकि सीपीयू उसे प्रोसेस करे, ताकि सीपीयू उसे प्रोसेस करे। सीपीयू ने उस डाटा को कर दिया प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद वापस वो डाटा दोबारा भेजता है मेन मेमोरी की तरफ। प्रोसेस करने के बाद वापस डाटा दोबारा भेजता है सीपीयू मेन मेमोरी की तरफ। क्योंकि हर प्रोग्राम चलने से पहले मेन मेमोरी में लोड होता है, डायरेक्ट ये आउटपुट यूनिट की तरफ नहीं भेज सकता, बल्कि वो डाटा दोबारा वापस आएगा मेन मेमोरी में। तो जब सीपीयू ने मेन मेमोरी से डाटा लिया, इसे कहा जाता है रीड ऑपरेशन। ये क्या हुआ है सारा प्रोसेस, ये जो भी मैंने पढ़ाया, ये सारा रीड ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन का क्या मतलब कि सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा कैसे ले रहा है। अगर डाटा ले लिया तो डाटा उसने रीड कर लिया, फिर सीपीयू ने प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद वापस किसकी तरफ भेजेगा? मेन मेमोरी की तरफ। तो जब डाटा सीपीयू से मेन मेमोरी की तरफ वापस जाएगा तो इस अमल को कहा जाता है राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन। अब राइट ऑपरेशन कैसे होगा? यहां पर डायग्राम के जरिए मैं समझाता हूं। मेन मेमोरी, इसके बाइट्स बने हुए हैं और ये सीपीयू है। अब सीपीयू ने डाटा भेजना है मेन मेमोरी की तरफ। प्रोसेस हुआ डाटा भेजना है मेन मेमोरी की तरफ। तो वही कहानी है। सबसे पहले सीपीयू कंट्रोल बस को यूज करेगा। लास्ट टाइम इसने रीड का सिग्नल भेजा, अब ये भेजेगा राइट का सिग्नल। राइट की कमांड जाएगी मेन मेमोरी की तरफ, रेडी हो जाएगी डाटा रिसीव करने के लिए। फिर सीपीयू एड्रेस बस को यूज करेगा और एड्रेस बस की मदद से उन बाइट्स का एड्रेस भेजेगा जिनकी तरफ ये डाटा भेजना चाह रहा है। तो उन बाइट्स का एड्रेस चला गया। फिर सीपीयू डाटा बस को यूज करके जो भी डाटा मेन मेमोरी तक पहुंचाना है वो पहुंचा देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये अमल कहलाएगा राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन, जब सीपीयू मेन मेमोरी की लोकेशन से डाटा लेगा तो ये रीड ऑपरेशन कहलाएगा। राइट ऑपरेशन, जब सीपीयू मेमोरी लोकेशंस की तरफ डाटा भेजेगा तो ये अमल कहलाएगा राइट ऑपरेशन। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा और सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेता कैसे और उसकी तरफ डाटा भेजता कैसे है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक तो आगे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि सीपीयू डाटा कैसे ले रहा है, कैसे भेज रहा है। सेकेंडली इसमें से कोई एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये वाले जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले हैं, ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बस इसका टॉपिक जो चैप्टर 2 में भी मैंने जिक्र किया, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस, उनका भी इंट्रोडक्शन आपको इस टॉपिक से मिल चुका है। कंट्रोल बस, इसकी मदद से कमांड और सिग्नल भेजे जाते हैं, उसका जो मेन निचोड़ है। एड्रेस बस ये क्या होती है? इसकी मदद से सीपीयू मुख्तलिफ पार्ट्स का उन
کیونکہ سی پی یو نے جس پارٹ سے رابطہ کرنا ہے، کمیونیکیشن کرنی ہے، میں نے بتایا کہ ہر پارٹ کو ایک ایڈریس ملا ہوا ہے، ہر پارٹ کو ایک، تو اس کا ایڈریس دے کر یہ کمیونیکیشن کرے گا. ایڈریس دے کر کیسے، کس کی مدد سے ایڈریس بھیجے گا؟ ایڈریس بس کی مدد سے. اٹ مینس ایڈریس بس کا ایک سمری سی ہمیں اس کی پتہ چل گئی کہ اس کی مدد سے مختلف کمپوننٹس کا ایڈریس بھیجا جاتا ہے. پھر ڈیٹا بس کا آئیڈیا ہوا کہ اس کی مدد سے سی پی یو ڈیٹا بھیجتا ہے یا ریسیو کرتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے ٹاپکس آئیں گے جن میں یہ والا اسٹرکچر ہمارا ایک ہیلپ فل ہوگا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم میموری میئرنگ یونٹس اور نیکسٹ جو ہمارے ٹاپکس ہیں چیپٹر نمبر 4 کے ان کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ.